Let us discuss the construction. I have constructed triangle ABC, given triangle, using its three sides. Okay, taking one precaution. Taking one precaution. Everyone has to be very cautious that the common vertex of both the triangles must be on the left hand side. Okay, so I drew AB, then I drew an arc BC of given length 4.5 centimeters. Here I'll write 4.5 centimeters. AC is 3.5 centimeters. Okay, so I drew an arc of 3.5, then an arc of 4.5 centimeters wherever they are intersecting, that is point C. Join B and A with C, you get triangle ABC. Okay, then we have already said that from the common vertex, two sides are starting, AB and AC. Convert them into rays. Finished. Okay, now the decision has to be made which is the smaller triangle and which is the larger triangle. That has to be taken using given ratio. In the given ratio, AC is to AQ is 3:5. But when we say ratio, we know that we have to take the common multiple. So AC is 3K and AQ is equal to 5K. So very clearly AC 3K and AQ 5K says that this side is a bigger one, this is a smaller one. AC is the side of the given triangle. That is smaller. That means that triangle is also smaller by the definition of similarity. Okay. So AC is the side of the given triangle and it is smaller. So given triangle is smaller. That means required triangle AQ 5K. It is bigger. So we should focus more on the required triangle. Okay, required triangle उसकी side AQ given triangle से बड़ी है, इसका मतलब अपना required triangle भी बड़ा होगा. Is that very clear? AQ is the side of the required triangle, है ना? वो side given triangle की जो corresponding side है उससे बड़ी है, इसका मतलब अपना required triangle AQ required triangle की side है और AQ बड़ी है तो ये triangle भी बड़ा होगा. That means required triangle is larger than the given triangle. Required triangle is larger than the given triangle. Now let us see how can we construct the required triangle. For which you have to draw one ray starting with the common vertex in the downward direction. From here we will draw one ray going downwards. This can be any ray making any angle, but normally it should be around 40 to 50 degrees. Therefore, we have written in one of the previous lectures that the ray which you want to draw should make an angle of approximately 40 degrees. So what should be the measure of this angle? There is no compulsion, but around 40 to 50 degrees. Okay. Then again you have to go back to the given ratio 3:5. Out of these two numbers, whichever is greater, so obviously 5 is greater, so you have to draw 5 arcs of same radius starting with vertex A. क्या कहा मैंने? इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उतने आर्क्स सेम रेडियस के ए से शुरू करते हैं. देखिए कैसे. सो 5 आर्क्स, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5. तो 5 आर्क्स आई हैव टू ड्रॉ. सो आई विल टेक सुटेबल रेडियस. ये रे के ऊपर 5 आर्क्स आने चाहिए. तो रेडियस कैसी लेनी चाहिए? मैंने इतनी लेनी चाहिए क्या? यहां से 1 आर्क, 2 आर्क, 5 कहां से आएंगे? तो यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एंड टेक अ स्मॉलर रेडियस. ठीक है. तो this much of radius I have taken. From point A, 1 arc. Wherever this arc is intersecting, from that point, 2nd arc. From this point, 3rd arc. From this point, 4th arc. From this point, 5th arc. Clear? कितने आर्क निकालने के हैं? Greater of the two numbers. जो भी होगा उतने आर्क. तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5. तो 5 आर्क निकालने के. ठीक है. We name these arcs as S1, S2, S3, S4,
S5. A से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एंड वी आर नंबरिंग लाइक दिस. जो A के पास आर्क आएगा ये दोनों में से, दिस इज आर्क नंबर 3, दिस इज आर्क नंबर 5, S3 S5. तो जो A के पास आएगा दिस आर्क विल बी इनर आर्क. तो आई विल से दैट दिस इज इनर आर्क. ऑलवेज रिमेंबर, ओके, ऐसा कुछ लिखना नहीं होता. दिस इज फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग. एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना होता. दोनों में से जो छोटा होगा वो इनर, जो बड़ा होगा वो आउटर आर्क. ओके, दिस इज आउटर आर्क. अब ये टेबल को हम लोगों को यूज करना है. ऑलरेडी वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज अ लार्जर ट्राइंगल. ये साइड AQ रिक्वायर्ड ट्राइंगल की है और AQ बड़ी है, इसलिए रिक्वायर्ड ट्राइंगल बड़ा है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. AQ और रिक्वायर्ड ट्राइंगल की साइड है, वो बड़ी है ना, इधर लिखा है. तो वो साइड बड़ी है, इसका मतलब लार्जर देन द गिवन साइड, गिवन ट्राइंगल. इसका कंपैरिजन इसके साथ होना चाहिए. अगर ये बड़ा है तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बड़ा, अगर ये छोटा होता तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल छोटा होता. ऑलराइट, ओके. नाउ वी नो दैट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज लार्जर. तो आपको क्या करना है, ये जो सेगमेंट है इसका जो अनकॉमन वर्टेक्स है, जॉइंट अनकॉमन वर्टेक्स B ऑफ द गिवन ट्राइंगल. तो यहां जो भी आएगा वो, अगर आप यहां C लिखते हैं तो C ज्वाइन करेंगे तो फिर B इधर चले जाएगा. जो यहां आएगा वो ज्वाइन करना है. किसको? इफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज लार्जर देन ज्वाइन वर्टेक्स B टू द इनर आर्क. ये दो में से, इनर में से और आउटर में से. तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल अगर बाहर है, लार्जर है तो बाहर है, तो ये जो पॉइंट है ये इनर को ज्वाइन करना है. यानी बाहर होगा तो अंदर को ज्वाइन करो और अंदर होगा तो बाहर को ज्वाइन करना है. यानी अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर. आई होप यू विल मेमोराइज दिस इजीली. ओके, तो नाउ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज लार्जर, देयरफॉर ज्वाइन पॉइंट B टू द इनर आर्क. तो ये जो पॉइंट है ये आप इनर आर्क यानी ये आर्क से, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करेंगे. ये इनर से ज्वाइन करेंगे. लार्जर के लिए इनर. अगर मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल छोटा होता तो इसको पैरेलल साइड अंदर आती है ना. तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल लाइज इनसाइड. स्मॉलर ट्राइंगल के लिए फिर ये जो पॉइंट है ये आउटर को ज्वाइन करते. स्मॉलर ट्राइंगल के लिए आउटर और लार्जर ट्राइंगल के लिए इनर. अब ये इनर आउटर कैसे डिसाइड करते? गिवन रेशियो से डिसाइड करते है ना. जो इसके नजदीक आएगा वो इनर, जो दूर आएगा वो आउटर. ओके, नाउ लेट अस जॉइन B विथ S3. All right. So for the larger required triangle, we have joined this point to the inner arc. अगर स्मॉलर ट्राइंगल होता रिक्वायर्ड ट्राइंगल तो आउटर आर्क को ज्वाइन करते. 3 बार 4 बार मैं इसी बात को बोल रहा हूं कि बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन. ये पॉइंट किसको ज्वाइन करना है? इसको अंदर ज्वाइन करना है कि बाहर? तो अगर रिक्वायर्ड ट्राइंगल बाहर है, बड़ा है, तो अगर रिक्वायर्ड ट्राइंगल लार्जर है तो इनर को ज्वाइन करेंगे एज वी आर डूइंग, एंड रिक्वायर्ड ट्राइंगल स्मॉलर है तो आउटर को ज्वाइन करेंगे. सो दैट टेबल इज वेरी क्लियर. आफ्टर डूइंग दैट देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज ऑलवेज सेम. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इसको पैरेलल लाइन ये आउटर आर्क में से निकालेंगे. जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां से पैरेलल लाइन इसको निकालेंगे. यानी इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, चाहे अंदर रहे बाहर रहे. अगर ये यहां होता तो भी हम लोग अंदर से निकालते, इधर से ऐसे जाते और इधर से ऐसे आते. ऑलराइट, सो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज अ रूटीन प्रोसीजर. दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट स्टेप कि इफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज लार्जर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल यहां से डिसाइड होता है रेशियो से, देन this point should be joined to the inner arc
and if the required triangle is smaller, then this point should be joined to the outer arc. Now rest of the things let us see. इसको parallel segment we want to draw through the outer arc. So what will we do? We will use corresponding congruent angles. Okay, यहां से sufficient radius लेकर एक arc निकालिए. Okay, keep the rounder on S5 and draw the arc of the same length. जितना ये arc length है उतना ही. Then take the distance between this point. ये जो आपने arc निकाला, ये इस एंगल के, ये जो क्रॉस वाला एंगल है, इसकी जो दो साइड्स है, उसको जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस यू हैव टू टेक एज द रेडियस. And from this point you will draw an arc like this. Join this outer arc with this point and extend. You will get a parallel line to this segment. Okay, इसको join करेंगे इसके साथ और बढ़ा देंगे. From here we will start and extend. Alright, so these two lines are parallel to each other. काम खत्म हुआ क्या? नहीं. From this point, wherever this segment is touching this ray, यहां से इसको parallel line निकालने की. फिर वही construction, फिर से corresponding congruent angles. What did we do here? We have drawn two congruent angles. इसको congruent angle मैंने यहां निकाला, but these angles are corresponding angles. Therefore, these two lines are parallel. Same concept we are going to use here also. इसको ये एंगल को कॉन्ग्रेंट एंगल यहां निकालेंगे. सो लेट मी से दैट ये B हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा था? B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P, तो ये आपका P है. एंड फ्रॉम P यू विल ड्रॉ अ पैरेलल सेगमेंट टू BC. कैसे? अगेन बाय कंस्ट्रक्शन. सो टेक सुटेबल डिस्टेंस, कीप द राउंडर ऑन पॉइंट B, टेक सुटेबल लेता है, नॉट टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए. एंड ड्रॉ एन आर्क. ओके, विद द सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ. थोड़ा ज्यादा हो गया तो चलेगा. देन टेक द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो आपने आर्क निकाला, ये इस एंगल के दोनों साइड्स को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां और यहां, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस यू हैव टू टेक. एंड ड्रॉ एन आर्क. ये पॉइंट से ये जो आर्क निकाला था, वो जहां इंटरसेक्ट कर रहा था, उस पॉइंट से आर्क निकालो. अब P को इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते. B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P था, तो B और P कोलिनियर आ गए. C का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q है, तो C और Q, तो ये आपका थर्ड वर्टेक्स रहेगा Q. सो योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज APQ. दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. तो ये दोनों पैरेलल निकाले और यहां से ये दोनों पैरेलल, तो यू हैव गॉट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल APQ. Alright, so the procedure is quite lengthy, decision making is quite theoretical, okay, but I have tried to explain all the details of the construction. Okay, with that you can construct some more examples, but I will solve one more example for you and then I'll give you homework on 2.2, but 2.1 homework I am sending you today itself.